Good morning, students. Students, we are going to start a new topic which is simple circuit. And in this, we would first understand Kirchhoff voltage law. This is Kirchhoff voltage law. Okay. To understand Kirchhoff voltage law, we would take a loop. You take a loop, closed loop. Okay. Kirchhoff voltage law says in a closed loop, it says in a closed loop, algebraic sum of all the voltages, algebraic sum of all the voltages is 0. It says in a closed loop, algebraic sum of all the voltages is 0. Now we would apply this concept. I am taking a circuit. Suppose this is a circuit, and in this circuit there is two cells. Just taking an example so that you can understand the concept of Kirchhoff voltage law. So the potential difference of this one is V1 and this one is V2. I named it. We have to just name first all the voltages present in the loop. The first point we have to do is we have named all the voltages present in a particular loop in which we are going to apply the Kirchhoff voltage law. And for that we need a current. We need a current. Suppose this resistance is R1 and this resistance is R2. As you are seeing, this is a closed loop. Current is flowing in the loop because of these cells. So what should be the direction of the current? Actually, we would not care about the direction of the current. You can take current either clockwise or anti-clockwise. It doesn't differentiate in the results. The result would be same finally. Okay. So we would not take care about the direction of the current. So I am taking current is flowing like this, means clockwise, and the current name I name it as I. So the potential difference across this and the potential difference across this, I named it as VR1. This is the potential difference across R1, and the potential difference across R2 is VR2. So the first point is assume the direction of the current clockwise or anti-clockwise. Name all the potential, all the voltages. This is V1, this is V2 already, and this is I named it as VR1 and VR2. Okay. And the current is clockwise. You can take current anti-clockwise, it doesn't differentiate in the results. Now we have to decide the polarity of this potential difference voltages, because here the polarity of V1 is clear. This is plus, this is minus, this is minus, this is plus. But here which terminal is positive, which terminal will be negative? We have to decide the polarity of voltage. So the second point is decide the polarity of the voltage. Decide the polarity of the voltage. Decide the polarity of voltage. Decide the polarity of the voltage. As the current, you can observe, you know the current always flows from high potential to low potential. Current always flows from high potential to low potential. So here you are seeing that the current is flowing in this resistor from this side to this side. Current is
Okay, this side to this side. So this is positive high potential and this is negative. In the same way, current is flowing in this resistance from here to here. This is high potential and this is low potential. So we have decided all the polarities of all the voltages in this particular loop. After completing this step, we would finally apply the Kirchhoff voltage law, and every sum of all the voltages in a closed loop is 0. So what we are going to write, how we would write this statement. So there are, you have seen that there are total 4 voltages, V1, V2, VR1 and VR2. Okay, just take any one voltages and make that voltage as a reference voltage. So you can take either V1, V2, VR1 and VR2. Reference voltage. You have to make any one as a reference voltage. Okay. Simply if I talk about, जैसे क्लास में आपका क्या होता है, मॉनिटर होता है, तो यहाँ पर भी मान लीजिए 1 2 3 4 स्टूडेंट्स हैं और किसी एक को आपको क्या बनाना है, मॉनिटर बनाना है, और किसी एक को मॉनिटर बनाना है. ओके, अब मॉनिटर जैसा बनाना है, किस स्टूडेंट को बनाना है जिसकी क्वालिटी अच्छी है. ठीक है, तो आप किसी को मॉनिटर बना सकते हैं. आपको लगता है नहीं ये मॉनिटर होना चाहिए जिसकी क्वालिटी अच्छी है या अच्छी है, तो आप किसी को मॉनिटर बना सकते हैं. तो यहाँ पर V1 V2 VR1 VR2 किसी को बनाना है. मान लीजिए हमने V1 को मॉनिटर बना दिया. अब डिसाइड करिए जिस स्टूडेंट को हमने मॉनिटर बनाया है, ये स्टूडेंट अच्छा था या खराब था, ये आपके ऊपर है. आप अच्छे वाले मॉनिटर को बनाना चाहते हैं, बैड हैबिट वाले स्टूडेंट को बनाना चाहते हैं. मान लीजिए आपने अच्छे स्टूडेंट को बनाया मॉनिटर, तो इसके लिए आप एक साइन डिसाइड करिए, प्लस या माइनस. आप मान लीजिए प्लस दे रहे हैं, तो प्लस तो ऑलरेडी है यहाँ पर, आप माइनस भी ले सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है आपने इसको मॉनिटर बना दिया और इसका साइन जो है प्लस है, यानी अच्छा स्टूडेंट है. अब इसका कंपेयर बाकी सबसे करिए कि बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं V2 VR1 VR2 ये इससे किस तरीके से अटैच है, कैसे जुड़े हुए हैं, उसको देखिए. इसका ये कौन टर्मिनल है, नेगेटिव. इसका ये टर्मिनल क्या है, नेगेटिव. तो V2 का जो नेगेटिव है वो V1 के नेगेटिव से कनेक्टेड है. ओके, V1 इसका ये जो है इससे कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है. तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल. सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, तो रिपेल होगा. और रिपेल होगा तो क्या V2 की दोस्ती V1 से हो पाएगी, नहीं. तो V2 V1 से दोस्ती नहीं कर पाएगा. इसका मतलब है कि V1 जो है जो अच्छा था, तो उसका मतलब V2 कैसा होगा, खराब. और खराब के लिए आपने क्या लिखा है, माइनस का. तो माइनस मतलब V2 V1 के जैसा नहीं है, तो साइन क्या आएगा, माइनस. इसका साइन किसका था, प्लस का. ठीक है, अब इसको देखिए VR2 को देखिए, इसका माइनस देखिए माइनस से कनेक्टेड, इधर वाले से माइनस माइनस से या इधर से प्लस कनेक्टेड है. तो ये VR2 में से क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है. इसका मतलब है ये जो VR2 है आपका, ठीक है, ये जो VR2 है माइनस माइनस रिपेल करेगा, इसकी भी दोस्ती V1 से नहीं हो पाएगी. तो इसका मतलब ये भी V1 जैसा आपने बनाया था, अच्छा था, तो आपका VR2 जो होगा वो माइनस बन जाएगा. आपको इस मॉनिटर से कंपेयर करना है, इसी को आपने रेफरेंस वोल्टेज बनाया है और किसी से कंपेयर नहीं करना. इसके बाद इसको देखिए, इसका जो प्लस है इससे किससे कनेक्टेड है, प्लस. ये भी रिपेल करेगा प्लस और प्लस, यानी इसकी दोस्ती किससे नहीं हो पाएगी. तो इसको आप कैसा बनाएंगे, माइनस का VR1 और कोई वोल्टेज बचा नहीं, इक्वल टू क्या, G. तो ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, अलजेब्रिक से मतलब ये प्लस और ये माइनस सबको हमने क्या कर दिया, अलजेब्रिकली ऐड कर दिया और इनका रिजल्टेंट क्या है, 0. क्योंकि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है वोल्टेज, तो इसलिए यहाँ पर अलजेब्रिक सम की बात हो रही है, वेक्टर सम की बात नहीं होगी, क्योंकि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो V1 V2 VR2 VR1 0. यहाँ पर हमने KVL अप्लाई कर दिया, यही आपका क्या है, KVL. अब यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू आपको पता है वो आप पुट कर देंगे. मान लीजिए V1 आपको गिवन होगा क्वेश्चन में 7, ये आपको गिवन होगा 5, आपको गिवन होगा 2 ओम, ये गिवन होगा 3 ओम. और सर्किट में पूछ लेगा करंट कितनी फ्लो कर रही है, I की वैल्यू निकाल. तो आप क्या करते हैं, यही इक्वेशन बन गई आपके से. अब V1 की वैल्यू पुट करिए, क्या है, 7 माइनस V2 की वैल्यू क्या है, 5 माइनस VR2 का ये V क्या होता है आपका, ओम्स लॉ IR. करंट
क्या फ्लो कर रही है I और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 V इक्वल टू IR, तो 3 into I और R। VR1 रेजिस्टेंस जो है करंट सेम है I है, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या 0। केवीएल लगाया, उसके बाद इन दोनों की वैल्यू ओम्स लॉ से यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी IR। 7 माइनस 5 आपका क्या आ गया 2, ये आपका कितना आ गया माइनस का 5 इक्वल टू 0, इसको उधर ले दीजिए 5 इक्वल टू 2, तो यहाँ से I की वैल्यू आपकी सॉल्व होकर आ गई 2/5, यानी कि आपका आ गया 0.4 और करंट है इसकी यूनिट क्या होगी एम्पीयर। ठीक है, ये हो गया। इन केस आपने जो करंट की डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट मैंने दी थी, और इसको अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया होता, अगर इस करंट की डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज लिया होता और तब हमने केवीएल लगाया होता, सॉल्व किया होता, ठीक है, तो आंसर जो आपका आएगा I की वैल्यू जो आएगी वो जस्ट आपकी वैल्यू नहीं आएगी 0.4, लेकिन जो यहाँ पर साइन आएगा वो नेगेटिव है, क्या आएगा माइनस का 0.4, और माइनस का मतलब सिंपल क्या है कि जो आपने करंट की डायरेक्शन मेजर करी थी वो रॉन्ग है, करंट एक्चुअली क्लॉकवाइज ही फ्लो होगी और उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। चाहे सॉल्व करने में आपको दिखाता हूं उसको ऐसे इसको सॉल्व करना है। ओके, ये आपका सर्किट का करंट हम लोग इसको ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, करंट का नेम चेंज है I कंट्रोल हो रही, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, केवीएल लगाने के लिए पहले पोलैरिटी निकालेंगे, इसकी पोलैरिटी इसकी पोलैरिटी, ये आपका VR, ये आपका VR, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो पोलैरिटी भी चेंज आएगा। करंट अब इसमें फ्लो हो रही है इस साइड से इस साइड, करंट ऐसे जा रही है इधर से इधर, तो यानी कि ये आपका प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस, ठीक है। बाकी पोलैरिटी आपको पता है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, ये तो फिक्स्ड है आपकी। अब इसमें केवीएल लगाते हैं, इसे एक मॉनिटर बना देते हैं, मान लीजिए V को बना दिया V1, लेकिन इस बार इसको अच्छा नहीं खराब बनाना चाहते, मान लीजिए नेगेटिव लेना चाहते हैं तो माइनस ले दिया, माइनस रेफरेंस वोल्टेज V1 को हमने माइनस ले दिया, ठीक है। अब V2 को कंपेयर करेंगे, माइनस माइनस रिपेल कर रहे हैं, जुड़ा हुआ है माइनस, माइनस से रिपेल करेंगे, इसका मतलब है V2 V1 के जैसा नहीं बनना चाहेगा, तो ये माइनस का बना है तो ये किसका बनेगा प्लस, समझ में आ गया, ये माइनस का बना है तो ऐसा नहीं बनेगा तो प्लस का बनेगा। इसको देखिए VR2 ये प्लस, ये किससे कनेक्टेड है माइनस, इसका ये जो प्लस दिख रहा है आपको ये किससे कनेक्टेड है माइनस से, प्लस माइनस क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब है ये जो आपका VR2 इसकी दोस्ती V1 से हो जाएगी और ये V1 के जैसा बनना चाहेगा, तो इसको V1 के जैसा बना तो माइनस का माइनस VR2, ठीक। इसको देखते हैं ये माइनस है ये प्लस है, इसका माइनस प्लस से कनेक्टेड है, या इधर से ये प्लस जो है माइनस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो है VR1 अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट पोलैरिटी, यानी VR1 और इसमें दोस्ती हो जाएगी, और दोस्ती हो जाएगी तो इसको भी इसके जैसा बनाना है कि माइनस का VR1 इक्वल टू क्या 0। इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, अगर हम इसके सारे टर्म को खोल के उधर ले जाते हैं तो ये आपका क्या होगा V1, यहाँ पर आएगा V1 माइनस V2 प्लस VR2 प्लस VR1 इक्वल टू क्या 0। ये वैल्यू आप देखिए V1 माइनस V2, अब यहाँ पर ये वैल्यूज आपकी क्या आ रही है, ये वैल्यूज आपकी नेगेटिव आ रही है, वहां पर वो वैल्यूज क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। सॉल्व करते हैं तब देखते हैं, तो ये आपका क्या है 7 माइनस 5 प्लस VR2 करंट आपकी क्या है I, रेजिस्टेंस आपका 5 प्लस VR1 आपका क्या है 2 इक्वल टू 0। 7 माइनस 5 कितना आ गया आपका 7 माइनस 5, ये आपका 7 माइनस 5 आ गया 2, 5 प्लस 2 7 इक्वल टू 0। उस वैल्यूज मिस्टेक हो गई है, यहां पर देखिए 3 ओम था, ये हमने 5 ले लिया, ये क्या है आपका 3 ओम है।
2 ohm and 3 ohm, 2 ohm and 3 ohm इस साइड में हमारा आपका 5, तो ये आपका 3 है, ये आपका जो है 3i और 2i, तो ये आपका 3, तो ये आपका क्या बनेगा 5, ठीक है 5, 2 प्लस 5 i इक्वल टू 0, यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे तो 5i इक्वल टू -2, i इक्वल टू -2 by 5, so i इक्वल टू आपका आएगा -0.4 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, ये आपकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन जो भी चाहे उसको अज्यूम कर लीजिए, बस आपका ये जो साइन आएगा ये चेंज है। तो इस नेगेटिव साइन के नाम मतलब है आप आंसर में नीचे लिख देंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन assumed in our problem is not the actual direction, this is actually the direction of the current would be opposite to the direction which I assumed in the numerical problem, okay? So जो actual direction होगी करंट की वो आपकी इस तरीके से होगी, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले नहीं पता है करंट एक्चुअली फ्लो किधर कर रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप कोई भी डायरेक्शन लेकर सॉल्व कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड आपका सेम आएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, बस यहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन है वो आपकी चेंज हो सकती है, नेगेटिव अगर आ गया डायरेक्शन आपकी अपोजिट होगी जो आपने अज्यूम करी है। तो दिस इज द केवीएल, मैंने दोनों ही वर्जन आपको दिखाया, डिफरेंस वोल्टेज को एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर, आंसर आपका सेम आ रहा है और वो मैंने बताया भी था कि माइनस आएगा तो माइनस आ गया। अब आप किसी और को डिफरेंस वोल्टेज बना सकते हैं, किसी और को मॉनिटर बना सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं, ओके? तो इसको प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट हम लोग कुछ चीजें न्यूमेरिकल करेंगे, और जो आपका सेल है, जो सेल की जो कनेक्शन है पैरेलल में और सीरीज में, वो केवीएल के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक विद द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। थैंक यू स्टूडेंट्स।